Hello students, so welcome to my YouTube channel, that is Raj's Mathematics Solution RMS, and I am Raj's. Today I am going to discuss the new tricks of a two-digit numbers square. In the previous class we have discussed the squares of two-digit number, and in this class we have discussed how to find out the square root of the two-digit numbers squares of square root. Okay, टू डिजिट नंबर का स्क्वायर जो हमने लिया था लास्ट क्लास में पढ़ा था, उन नंबर्स का स्क्वायर रूट आज कैसे निकालेंगे ये आज मैं पढ़ाऊंगा. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो हियर आर द आई हैव रिटन सम ट्रिक्स और सम क्राइटेरिया और द लॉजिक्स हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. ओके, सो इफ द नंबर्स हैविंग 1 4, 5, 6 and 9. If the numbers having 1, 5, 1, 4, 5, 6, 9 in the unit digit means ones place. If the question is given and its unit place digit is the numbers 1, 4, 5, 6, 9, we can easily find out the square roots. Okay, we can easily find out the square roots. That is the trick of the square root. Okay, if the unit digit or the ones place of a number, the ones place of a number having 1, 4, 5, 6, 9, ones place of a number having 1, 4, 5, 6, 9, we can easily get the square roots of the whole number. Okay, okay. So what is the logic of that? If a quotient having ones place digit is 1, then the square root becomes 1 or 9. Then the square root becomes 1 or 9. Why? Because let's see, if 1 square equals to 1, 1 का square क्या है 1, and 9 square also 81, and last place is 1 place is 1. Okay, that's why you can easily carry out the squares. Okay, okay. Then next 4. Okay, if the quotient having a 4 in its unit place, then we can easily get the square root of that whole number. Okay, how can? Because if the quotient having 4 in the ones place, then the square root becomes 2 or 8. The square root becomes 2 or 8. Okay, the square root becomes 2 or 8. Means 2 का कितना होता है? 2 square 4 and 8 square is 64. The last place having 4. The last place having 4. Okay, then 5. Also 5, because 5 square is 25 and 25 root is 5. Okay, then 6. If the quotient having on its unit place is 6, then we can easily find out the square root, because 4 square is 16 and 6 square is 36. That is the logic. Okay, then if 9 is at the, अगर कोई क्वेश्चन में if any question have 9 in its unit place, okay, 9 in its unit place, then the square root of that number becomes 3 or 7. 3 or 7, not 9. 3 or 7. Okay, 3 or 7. ठीक है, जैसे कि square root of 9 equals to 3. 9 equals to 3 and 7 square equals to 49, and 49 square becomes 7. 49 square root becomes 7. Okay, okay, clear. Okay, then if the quotient having, बस ये हो गया, the number satisfied if the unit place of the number having 1, 4, 5, 6, 9, then the square root becomes desirable. Then the square root becomes evaluated, or the square root we can get easily. Okay, if the numbers having 2, 3, 7, 8 in its unit place, then we cannot got the result. We cannot got the square root of that number. Okay, if the quotient having 2, 3, 7, 8 in its unit place, we cannot got the square root of that numbers. Okay, clear? These are not possible. Okay, चलो बढ़ते हैं. So here I have written the squares up to 1 to 10. Second,
ये क्या बोलता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें फर्स्ट जान लेना चाहिए कि किन किन नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और दूसरी बात ये जानना है कि हमें क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक ये सब का स्क्वायर हमें याद करना है। ठीक है, वी हैव टू रिकॉल द स्क्वायर्स और रिवाइट द स्क्वायर्स ऑफ 1 to 10। अगर ये याद रह गया तो हमने सारे 2 डिजिट का जो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है सब निकाल पाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, सो एक क्वेश्चन है 225। The question is given 225. Okay, if the question is given 225, how can you got the square root? Okay, so here are some steps to find out the square root. How can you find? First step, round up the last two numbers. Round up the last two numbers. Okay, round up the last two numbers means ये जो नंबर है ना, दो नंबर को राउंड अप कर लो। ठीक है, राउंड अप द लास्ट टू नंबर्स, लास्ट टू नंबर को राउंड अप कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, फाइंड आउट द 100 प्लेस और फाइंड आउट द 100 प्लेस और both the 100 place or 1000 place digit lie between which square number? Which square number? That means find out the 100 place or 100 and 1000 both places are lie between और which square number? कौन सी स्क्वायर नंबर के बीच में ये दोनों स्क्वायर, ये नंबर है, ये दो नंबर है या एक नंबर है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए, ये नंबर है 2, यहाँ पे एक नंबर है 2, 100 प्लेस में बताया था ना, 100 है या फिर 4 डिजिट का हो तो दोनों ले सकते हैं, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस का डिजिट। ठीक है, चलिए, 2 lie between on which square number? Means 1 and 4 के बीच में 2 है, because 1 is less than 2 and 4 is greater than 2. Okay, 1 and 4 means यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 और 4, और ये भी लिख सकते हैं 1 और स्क्वायर नंबर अगर लेते हैं, स्क्वायर नंबर लेते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 और 2 के बीच में रख सकता है या फिर 1 और 4 के बीच में रख सकता है। ठीक है, ये 1 है, ये 4 है, 1 4 in between 1 and 4 the number 2 is fluctuate, the number 2 is fluctuate between the 1 and 4, the number 2 is fluctuate in the 1 and 4. Okay, third step, यहाँ पे मैंने स्टेप नहीं लिखा है क्योंकि मैं बताऊंगा कि थर्ड स्टेप से क्या करना है। ठीक है, चलो, ओके, देखना है हमें कि फर्स्ट जो हमने कंडीशन लिया था वो सैटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जो लिया था फर्स्ट में ना, जो कंडीशन लिया था, अगर कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट, कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर इन पांचों में से कोई भी हो, मींस 1 4 5 6 9, इन पांचों में से कोई भी हो, तो उसका था ना, अगर 5 आया तो क्या रहेगा, स्क्वायर रूट 5 रहेगा। तो पता चल गया इसमें लास्ट में 5 है तो स्क्वायर रूट क्या आएगा, 5 आएगा। बस फोर्थ स्टेप, इस कंडीशन में जो भी था ना उसको पुट करना है। ठीक है, ये पता चल गया हमें 5 आएगा स्क्वायर रूट के 5 का 5 आएगा। ओके, देन क्या करना है आपको, अच्छा, ये फ्लक्चुएट, ये किन दोनों में फ्लक्चुएट होता है ये आपको देखना है। 1 में फ्लक्चुएट, सॉरी, ये जो फ्लक्चुएट हुआ ना 1 एंड 2 के बीच में स्क्वायर नंबर लेंगे। ठीक है, कौन सा नंबर, स्क्वायर का नंबर लेंगे, 2 का स्क्वायर है। ओके, ये 1 का स्क्वायर एंड 2 के स्क्वायर के बीच में ये फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, फ्लक्चुएट इन बिटवीन 1 एंड 2 स्क्वायर। ओके, ओके, देन मींस 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, यहाँ पे इसका बैकवर्ड नंबर लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लेना है, इसका बैकवर्ड नंबर लेना है। ठीक है, मींस 2 का 1 का स्क्वायर था ना वो लेना है, तो यहाँ पे 10 प्लेस में 1 आ जाएगा, और 5 का तो आपको पता है 5 हो तो 5 ही आएगा, बस 5 डाल दो, यहाँ पे हो गया 15 का स्क्वायर हो गया 225, 15 का स्क्वायर हो गया 225। ओके, क्लियर।
ओके चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं 7921 ये एग्जांपल मैं ले लेता हूं 7921 ओके चलिए मैं हटा देता हूं 7921 क्या करना है स्टेप के अनुसार हमें करना है ठीक है तो स्टेप्स क्या है राउंड ऑफ द लास्ट टू नंबर्स टू नंबर्स में हमें राउंड ऑफ कर देना है ठीक है राउंड ऑफ द लास्ट टू नंबर्स ओके देन स्टेप 2 फाइंड आउट द 1000 and 100 place 100 and 1000 place lies between which square number okay 79 इन दोनों में फ्लक्चुएट होगा 79 8 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर इन दोनों में फ्लक्चुएट होगा 8 का स्क्वायर 79 एंड 9 के स्क्वायर के बीच में फ्लक्चुएट होगा ये नंबर फ्लक्चुएट होगा इसका 64 is 79 and 9 का स्क्वायर is 81 ओके देन क्या करना है हमें याद था ना वो जो ट्रिक मैंने बताया था पहले जो हमारा कंडीशन था अगर क्वेश्चन में यूनिट प्लेस 1 है तो क्या आएगा इधर 1 आएगा नहीं तो क्या आएगा 9 आएगा क्या आएगा इधर 1 आएगा नहीं तो 9 आएगा ये था ना हमारा रूल और कंडीशन ये था ना एक आएगा नहीं तो 9 आएगा ठीक है अच्छा यहाँ पे देखो क्या आता है ठीक है यहाँ पे ये आएगा यूनिट प्लेस में आपको तो दो ही डिजिट लाना है ना क्योंकि अब स्क्वायर रूट निकालते हैं कितने आएगा दो डिजिट नंबर का निकालते हैं ना ठीक है मैं दो डेज देता हूं यहां पे ठीक है ये वन स्पेस का डिजिट 1 आएगा और 9 आएगा आपको कैसे पता चलेगा क्या करोगे ठीक है चलो मैं बताता हूं कैसे करोगे ये जो दोनों में फ्लक्चुएट हुआ है ना ये जो नंबर था हमारा 10th प्लेस एंड 1000 प्लेस का सॉरी 100 एंड 1000 प्लेस का जो नंबर था ये जिन दोनों में फ्लक्चुएट हो रहा है उसका पास वाला नंबर मींस दिस नंबर इज नियरेस्ट टू व्हिच नंबर्स कौन से नंबर के पास में ये नंबर आता है अच्छा 79 से 64 माइनस करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा अगर 81 से 79 माइनस करोगे तो डिफरेंस दो ही है 15 लोगे तो ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए क्या होगा ये 79 किसके पास है 81 के ज्यादा पास है 81 के पास है ना तो क्या लोगे अगर ये नंबर अपने राइट साइड में के पास होगा तो आपको इन दोनों में से नीचे वाला जो इसको चूज करना पड़ेगा ठीक है अगर ये नंबर राइट वाले के पास में हो तो आपको ये नीचे वाला चूज करना पड़ेगा ठीक है अच्छा और एक मैं बात बता देता हूं ये जो मैंने सीरियली लिखा है ना 1 हो तो 1 और 9 आएगा आपको यहाँ पे ऐसे ही लिखना है यहाँ पे 9 यहाँ पे 1 लिखोगे तो भूल हो जाएगा ठीक है आपको क्या लिखना है जैसे अड़गली है वैसे ही आपको लिखना है यहाँ पे 1 यहाँ पे 9 आएगा राइट साइड का पास हो तो नीचे वाला नंबर लेना है आपको नीचे वाला नंबर लेना है बस यहाँ पे नीचे वाला नंबर डाल दो 9 वंस प्लेस फिल आउट देन 10th प्लेस का निकालेंगे क्या करेंगे इसका b4 नंबर लेंगे इसका b4 नंबर लेंगे कौन सा नंबर ये 64 नहीं लेना है आपको कौन सा नंबर लेना है जो स्क्वायर वाला नंबर है ना ये स्क्वायर वाला नंबर को लेना है आपको बस 8 डाल दो 89 का स्क्वायर आ गया 7921 that is 7921 और 7921 का स्क्वायर रूट है 89 ओके क्लियर चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है 1024 1089 1681 एंड 2209 ओके चलिए इन सब का स्क्वायर रूट निकालते हैं कैसे निकालोगे चलिए मैं एक एक बताता हूँ आपको कैसे निकालोगे पहला है 1024 ठीक है यहाँ पे देखो 1024 इसका कैसे निकालोगे स्टेप 1 में करोगे स्टेप 1 क्या होता है हमें राउंड ऑफ द लास्ट टू नंबर से लास्ट टू नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है ठीक है पता चल गया नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट स्टेप में ये 1100 प्लस ये दोनों नंबर का आप क्या करोगे देखोगे कि ये दोनों नंबर किन में फ्लक्चुएट है किन दोनों में फ्लक्चुएट है किस में फ्लक्चुएट होगा 10 ये 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर 10 किस में फ्लक्चुएट होगा 3 का स्क्वायर एंड 4 के स्क्वायर के बीच में फ्लक्चुएट होगा किन दोनों के बीच में 3 का स्क्वायर एंड 4 के स्क्वायर के बीच में फ्लक्चुएट होगा ठीक है इन दोनों में ये फ्लक्चुएट होगा तो 9 10 एंड 60 ओके इन दोनों में ये फ्लक्चुएट है ना ठीक है तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको क्या निकालना है ये जो 4 है ना किसी भी नंबर का हम कंडीशन पे जाएंगे क्या था अगर 4 है तो
क्या आएगा स्क्वायर रूट 2 आएगा नहीं तो 8 आएगा, 2 आएगा नहीं तो 8 आएगा। ठीक है, ऐसे ही लिखना है आपको अड़रली, इधर उधर मत लिखना। ठीक है, अड़रली लिखना है, 2 आएगा नहीं तो 8 आएगा। ठीक है, ओके। अगर 2 और 8 आया तो इसके बाद क्या करना है? थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में देखना है ये जो 10 है ना, ये किस नंबर के पास में है? 9 के पास में है या 16 के पास में? ऑब्वियसली 9 के पास है। ओके, ऑब्वियसली 9 के पास है। तो क्या करोगे? अभी 9 के पास हो तो कौन सा नंबर लोगे? ये ऊपर वाला नंबर लेना है आपको। अगर लेफ्ट साइड का नंबर के पास हो तो आपको ऊपर वाला नंबर लेना है, और राइट साइड के पास में हो तो आपको राइट वाला या नीचे वाला नंबर लेना है। ठीक है, फिर से बोल देता हूं, अगर ये मिडिल वाला नंबर जो कि हमारा दोनों नंबर के बीच में फ्लक्चुएट है, ओके, वो नंबर अगर लेफ्ट वाले नंबर के पास में हो, पास वाला नंबर हो, या राइट साइड नंबर के पास में हो तो आपको ऊपर का नंबर लेना है। लेफ्ट साइड के नंबर के पास हो तो आपको ऊपर का नंबर लेना है, और राइट साइड का हो तो नीचे का नंबर लेना है। ठीक है, ओके। तो ये क्या है? 9 के पास में है तो कौन सा नंबर लेना है आपको? ऊपर वाला। मींस आपका 1st place that becomes equal to 2 and the 10th place becomes before of that number 3. So 32 square becomes 1024, or root of 1024 becomes 32. Okay, clear? Okay, चलो नेक्स्ट यहाँ पे कर देता हूँ। नेक्स्ट वन 1089 इसका निकालना। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है हमारा, आसान है। बस पहला स्टेप क्या करना है? इन दोनों को राउंड अप कर देना है। क्या करना है? इन दोनों को राउंड अप कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? राउंड अप करने के बाद क्या करोगे? ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। देन ये जो नंबर है इन दोनों के फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड आ गया। 3 और 4 के बीच में आपका रिपीटेड आपका फ्लक्चुएट है ये नंबर। 3 और 4 के बीच में ये फ्लक्चुएट है। ठीक है, ये 9, 10 एंड 6 इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएट है। 9 वाला पास में है, अगर 9 हो तो क्या आएगा? 3 आएगा, नहीं तो क्या आएगा? 7 आएगा। 3 आएगा नहीं तो 7 आएगा। ठीक है, 3 आएगा नहीं तो 7 आएगा। लेफ्ट वाले के पास में है तो क्या लेना है? ऊपर वाला नंबर लेना है। सो यूनिट प्लेस बिकम्स 3। हो गया 3। देन इसका प्रीवियस लेना है 3. So 33 becomes the square root of 1029. 33 becomes the square root of 1029. Okay, clear? Okay, next. चलो next पे मूव करते हैं। ये क्या आएगा? देखो 1681 इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? फर्स्ट स्टेप, ओके, ओवर फर्स्ट स्टेप निकल लिया हमने। सेकंड स्टेप, ये जो 16 है ना, किन दोनों के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है ये देखना है आपको। 16, अच्छा ये तो 4 हो गया, 16 ये तो आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये जो 16 है ना, ये 16 किसका स्क्वायर रूट है? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर है 16, ये आ गया। देन आपको क्या करना है? अच्छा लास्ट में 1 हो तो क्या आएगा? 1 आएगा, नहीं तो 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा, 1 आएगा नहीं तो 9 आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या डाल दोगे? यहाँ पे 1 ही डालोगे। ठीक है, ये 41 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1681। ओके, 1681 becomes। ओके, देन चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 2209 इसका रूट निकालना है। फर्स्ट स्टेप राउंड अप द नंबर्स। सेकंड स्टेप ये किन दोनों में फ्लक्चुएट हो रहा है देखना है हमें। 22 is fluctuating between 4 and 5. 4 and 5 means 4 का स्क्वायर एंड 5 के स्क्वायर के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है 22। ठीक है, ये 16 आ गया, ये आ गया 22, ये आ गया 25। ओके ओके ओके, देन 9 हो तो क्या आएगा? 9 हो तो क्या आएगा? 3 आएगा नहीं तो 7 आएगा। 3 आएगा नहीं तो 7 आएगा।
देन क्या करना है, ये जो 22 है किसके पास में ये हमें देखना है, राइट वाले के पास में। ऑब्वियसली 22 इज नियरेस्ट टू 25, तो क्या करना है, यहाँ पे नीचे वाला नंबर लेना है। कौन सा नंबर लेना है, नीचे वाला नंबर लेना है। मींस यहाँ पे 7, यूनिट प्लेस बिकम 7 एंड ये वाला क्या होगा, इसका प्रीवियस नंबर होगा। ऑब्वियसली 47 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2209। 2209 becomes the square root of 47. The square of 47 and square root of 2209 is 47. Okay? Okay. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन मूव करते हैं चलो 729 ले 729 फर्स्ट स्टेप राउंड ऑफ कर देना है, ठीक है, राउंड ऑफ कर देना है। देन सेकंड स्टेप क्या करना है, ये जो 7 है किन दोनों के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, ये देखना है किन दोनों के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, 2 and 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। 7 should be fluctuated. Then यहाँ पे 4 लिखना है, then 7, then 9. ओके, 7 किसके पास में देखना है अभी, अच्छा और एक बार 9 हो तो क्या आएगा, 3 और 7 आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा, 3 तो 7 आएगा। देन आपको क्या करना है, ये जो 7 है किसके पास है, 9 के पास है। ऑब्वियसली राइट में तो क्या लेना है आपको, नीचे वाला नंबर लेना है। ये 7 हो गया यूनिट प्लेस में और ये जो आ गया ना इसका प्रीवियस नंबर लेंगे। So 27 square becomes 729 और root over of 729 becomes 27 okay, clear, okay। लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिया हूं, इन सबको कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, ओके। जो भी बताया हूं, जो भी कंडीशन है, कंडीशन था जो भी बताया मैंने, कैसे करोगे क्या करोगे उन सबको अप्लाई करो। कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है, ओके। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द न्यू वीडियोस विद न्यू कंसेप्ट। टिल देन